Hi guys, how are you? I hope you all are doing well. It has been quite long because I think most of you might know that there is a very busy schedule in Police Academy, and now fortunately we are few friends who are just trying to continue with this channel, and one of my friends, Mr. Rohan, who is also a DYSP with me, he is recording this video and I am talking to you. Initially, I have recorded two videos. One was regarding how to, strategize the approach for civil services and Kashmir Administrative Services examination as well. Today, we will be talking about CSAT, Civil Services Aptitude Test in particular. And after CSAT, I think we will be talking about newspaper, how to read newspapers. And right now I would like to tell you that now there is a gap of nearly 2 to 3 months for preliminary examination for UPSC and Kashmir Administrative Services examination as well. So we need to strategize for both the examinations in tandem, because both the examinations require a similar approach because the pattern is same. Yeah, first of all, I would like to share the feedback which I got in the very first video. The feedback was some people wanted that I should talk about fitness, and some people talk that I should talk about zoology as optional. And yeah, for zoology as optional, there are few of my friends who have studied zoology. I will talk to them. They will share their experience. And then there were some videos, some comments that we are waiting for new videos, and some people are undergraduates. They want guidance how to approach this examination at graduation level, and some were talking about optional political science and international relations. I think PSIR, I will be talking very comprehensively whenever you people require any guidance in PSIR, not only for civil services but also for NET, JRF, or even admissions in some good universities like Jawaharlal Nehru University or Delhi University. So today we will be talking about civil services aptitude test in particular, because many people who are very good in general studies or who get through general studies paper, they are not able to qualify civil services aptitude test paper. So I will just give the strategy. You people need to study things on your own. आपको खुद पढ़ना है, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट हाँ, we will just tell you कि हमें क्या लगता है कि better path कौन सा है. So I will be telling that thing. And meanwhile, I would like to share that on 27th June 2021 we have civil services preliminary examination, and 11th July we have JKPSC examination. So both the examinations are somehow in the same month, like June में है और 11th, there is a gap of some 10-15 days. So that's a good thing. In civil services aptitude test, we have, first of all, we should know the syllabus. What is the syllabus of CSAT? There is, if you look into the syllabus, there is comprehension, interpersonal skills. In comprehension, there will be passages and all. So they are just checking your communication, your English, how you are able to comprehend it. Then interpersonal skills, which includes communication skills as well. Then logical reasoning. Then decision making and problem solving. In decision making and problem solving, I think most of the people are okay with this part. Then general mental ability, which includes some basic maths as well. Then basic maths, which includes data and interpretation, some graphs and some tables. How you are able to comprehend these data. Now, for CSAT, guys, you need to understand one thing. 4 लोगों की कैटेगरी मैंने बनाई CSAT के लिए. कैटेगरी A, B, C and D. कैटेगरी A people और वो तो मास्टर्स हैं, उनका कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. ये वो लोग हैं जो 200 में से 170 प्लस लाने वाले हैं. उनका कंप्रहेंशन अच्छा है, मैथमेटिक्स बेसिक अच्छा है. सो इनके लिए हमें कुछ बोलना नहीं है. They are good, they don't need any guidance, or they just need to do one paper before examination.
और वो अच्छा कर लेंगे, क्योंकि CSAT क्वालिफाइंग ही है। आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आपको 30 क्वेश्चंस तक सही होने चाहिए ओवरऑल, और आई मीन 27, लेकिन यू नीड टू ट्राई फॉर 35 ताकि टू बी इन द सेफ जोन। देन देयर इज कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। जो कैटेगरी डी है वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जादू की छड़ी होनी चाहिए। भाई हमें पढ़ना कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड टू टेल अस द स्ट्रेटजी एंड वी शुड गेट थ्रू। इस कैटेगरी के लिए भी हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। दे शुड जस्ट एंजॉय देयर लाइफ, दे शुड नॉट प्रिपेयर। सो कैटेगरी ए, दे आर गुड, दे हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स, सो उनको भी कुछ वो तो ठीक है, दे शुड फोकस ऑन देयर GS। And category D, they should neither focus on GS nor this, they should just enjoy their life, whatever they are doing, because या तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, so it is not a cake. Then category B and category C, जिसमें हम लोग फॉल करते हैं। कैटेगरी B में होते हैं those people जो CSAT का पेपर देख के उनको लग रहा है कि यार it is within our reach, but unfortunately वो मार्क क्रॉस नहीं कर पाते हैं। कैटेगरी सी भी वही है। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कैटेगरी बी वाले हैं वो लोग जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जैसे इफ यू नीड टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन यू नीड लेट इट बी 33%, उनको आता है 30% और 28%, सो दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन, उनको थोड़ा सा पुश और चाहिए। एंड द सेकंड कैटेगरी जो बहुत उसे नीचे है, उनका मान लीजिए आप 15 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं आउट ऑफ 80, सो उनके लिए हम बता देंगे करना क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी बी एंड सी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट CSAT से थोड़ा डर भी है उनको और लग रहा है कि बॉर्डर लाइन पे भी हो सकते हैं। आई थिंक व्हाट दे नीड टू डू, दे नीड टू स्टार्ट विथ CSAT पेपर्स। आप एक काम कर लीजिए, UPSC का या JKPSC का पुराना पेपर, JKPSC का ओनली 1 पेपर होगा, बिकॉज JKPSC ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया CSAT, एंड UPSC प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का है काफ़ी सारे पेपर्स सिंस 2013। सो आप UPSC के 2 पेपर्स उठाइए और JKPSC का 1 पेपर, दैट मीन्स 3 पेपर्स। एंड नाउ दोज पीपल हु आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एंड they have some issues with CSAT, they need to take 3 papers of UPSC. And best thing is that you need to start with paper 1, कोई भी एक पेपर उठाइए, उसमें आप टाइम का मत सोचिए। अगर इसमें है 2 घंटे का टाइम, आपको मैं देता हूँ 8 घंटे का टाइम एक पेपर को, 8 hours. 8 hours is quite enough, but don't think about the time. टाइम मैनेजमेंट हम बता देंगे कैसे फिर करना है। यू स्टार्ट विद द पेपर। नाउ कैटेगरी बी जो थोड़े ठीक हैं, एंड कैटेगरी सी जो उनके उससे थोड़े से कमज़ोर ही हैं CSAT में। कैटेगरी बी पीपल वो अटेम्प्ट करेंगे, लेट इट बी 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस में से उनके लेट इट बी 35 ठीक होंगे और 30 ठीक होंगे, 20 क्वेश्चंस गलत होंगे और 15 क्वेश्चंस गलत होंगे। इट मीन्स दैट जो 20 क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड, बट अनफॉर्चुनेटली दोज 15 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस आर रॉन्ग। इसका मतलब है यू हैव सम बेसिक आइडिया, इसीलिए ट्राई किया था, ऐसे ही ट्राई नहीं करेंगे आप कोई भी क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अटेम्प्ट करने के बाद हमें गलत हुए 20 क्वेश्चंस और 21 क्वेश्चंस, उन 21 क्वेश्चंस गलत करने से हमें क्या हो रहा है, एक तो हम वो 20 क्वेश्चंस जा रहे हैं और 21/3 + 7 क्वेश्चंस और गलत हो रहे हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। सो ये 20 क्वेश्चंस हमें चेक करने हैं कि ये हमारे गलत क्यों हो रहे हैं। विद दिस CSAT सम पीपल आर एबल टू डू सम 30 क्वेश्चंस और जो 20 वो रॉन्ग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फोकस ऑन दोज 20 क्वेश्चंस, क्योंकि वो रॉन्ग गलत हमें कहाँ पे हो रहा है, बिकॉज उनका बेसिक आइडिया है। सो मैं चाहता हूँ कि वो जो 21 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस हम गलत कर रहे हैं, उनमें से हमें एक्यूरेसी, वी नीड टू एनहांस द एक्यूरेसी, उसमें से कम करने हैं गलत। 15 में से हमें वी नीड टू गो फॉर लेट इट बी 50%, 7 क्वेश्चन एटलीस्ट हमें उसमें से ठीक होने चाहिए, उन पे हमें फोकस करना है। और हो गया ये एक। जो अब सी कैटेगरी वाले लोग हैं वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं जस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस, है ना, और अगर वो अटेम्प्ट कर रहे हैं 25 से 35 तक भी, बट उनके 15 गलत हो रहे हैं उसमें से, दैट मीन्स 20 सही है, 15 गलत है, और वो बहुत ही पीछे हैं फिर।
अब क्या है उनके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यही 15 क्वेश्चन है जो गलत कर रहे हैं वो। अगर वो इफ दे फील दैट वी नीड टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस बट फिर गलत हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखना है हमें गलत क्यों हो रहे हैं। अगर लग रहा है कि हमें बड़ा कन्फ्यूजन था कि ये क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल देयर इज क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो कि आपको लगता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, मैंने अटेम्प्ट कर दिया बट गलत आंसर निकला। सो ये क्वेश्चन अगर गलत आपको हुआ लेकिन आपको लग रहा है, यू हैड अ फीलिंग दैट दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट अनफॉर्चुनेटली यू कुडंट मार्क इट राइट, सो यू नीड टू रीड दिस क्वेश्चन, क्यों गलत हो रहा है, ये सही करना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत हुआ है देन वी आर नॉट इन द रेस। हो गया ये एक चीज। वो फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेम्प्ट किया, आपको आसान लग रहा था लेकिन गलत हुआ, देन आफ्टर दैट आपने उस पर थोड़ा सा एनालिसिस किया, उस एनालिसिस से आपको ये अनर्थ हो रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज जो मैं सोच रहा था वो अप्रोच ही नहीं था इस क्वेश्चन के लिए। अब अगर आपको लग रहा है कि जो वो अप्रोच इसके लिए है, आई शुड अटेम्प्ट और आई शुड लर्न दैट अप्रोच, देन इट इज गुड। अगर लग रहा है कि नहीं बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी दिस क्वेश्चन, सो प्लीज डोंट ट्राई, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर दोज क्वेश्चंस जिनकी वजह से आपके लास्ट आंसर्स गलत आ रहे हैं। एक तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं, दूसरा आपका टाइम भी जाता है। सो ट्राई टू, यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वेश्चंस। अगर आपको जज कर पाए ना कि दिस क्वेश्चन आई शुड नॉट अटेम्प्ट, 20% गेम आपका हो गया। इफ देयर आर 80 क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई 20 क्वेश्चंस जो आप सोचोगे कि आई शुड नॉट ट्राई फॉर दीज क्वेश्चंस। वो 20 अगर आपने एलिमिनेट कर दिए, उन 20 क्वेश्चंस की वजह से आपका हाफ एन आवर टाइम बच गया। हो गया ये सी कैटेगरी वाले। हाँ, फिर क्या है, बोथ फॉर बी एंड सी। फर्स्ट अप्रोच क्या था कि जो आपने अटेम्प्ट किए जो गलत हुए वो प्लीज चेक करिए। उनमें से अगर आपको 15 गलत हुए, 15 में से लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा और मेहनत करके हमें 6 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। और जो वो बाकी 5 बचे, अगर आपको लग रहा है कि वो मुझे बहुत ही मुश्किल है, डोंट टच दोज क्वेश्चंस। सेकंड थिंग इज दैट एवरीबडी सेज दैट अरे इंग्लिश में तो बहुत आसान है, कंप्रहेंशन तो मैं कर लूंगा। बट कंप्रहेंशन में नियरली 40% क्वेश्चन होते हैं कंप्रहेंशन से, बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पैसेजेस पढ़ के हम सोचते हैं कि इसका ये आंसर होगा, फिर गलत होता है। इन कंप्रहेंशन हम बहुत ही सबसे कम प्रैक्टिस हम कंप्रहेंशन की करते हैं, जिसकी वजह से हमारे नंबर कम हो जाते हैं और हम उसी में गलत अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि हम मेहनत नहीं करते हैं कंप्रहेंशन में। हम बोलते हैं हमने अंग्रेजी पढ़ी है, वी नो इंग्लिश, तो विल बी वेरी कंफर्टेबल इन दिस। सो डोंट कमिट दैट मिस्टेक। कंप्रहेंशन का प्रैक्टिस करना ही होगा। अगर आप उसमें अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज यू आर समहाउ मोर कंफर्टेबल इन दैट पार्ट। अगर उसी में गलत किया आपने तो फिर बाकी में भी गलत होगा। हो गया ये कंप्रहेंशन। फर्स्ट इज सी, कंप्रहेंशन पे फोकस करना है। दूसरा आईपीएस जो है, इंटरपर्सनल स्किल्स। जब आपका कंप्रहेंशन ठीक होगा, आईपीएस भी ठीक होगा। इसके लिए आपको जो यूपीएससी ने पैसेजेस दिए हैं वो प्लीज़ बहुत अच्छी तरह पढ़िए, और फिर जो आपका आंसर लग रहा है कि जैसे इसका इस पैसेज से वो बोलेगा व्हाट डिड यू कंप्रहेंड, आप ए कंप्रहेंड करते हैं लेकिन पैसेज वाला आंसर उसका बी होता है, देन थिंक अबाउट दैट व्हाई इट इज बी। जब आप 5 या 10 क्वेश्चन वैसे करेंगे कि व्हाई इट इज सी, व्हाई द एग्जामिनर कंप्रहेंडेड इट दिस वे, देन यू विल स्टार्ट comprehending things like that, like the examiner, and you will mark most of the questions right in comprehension. Now this we got के कैसे हमें comprehend करना है, क्या देखना है। जो मैं अभी बता रहा था आपको regarding comprehension and interpersonal skills, the same logic and law applies to logical reasoning and decision making and even mental ability और basic mathematics as well. हमें इन सब में देखना है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग में यू नीड टू डू 10-15 क्वेश्चन। इफ़ यू थिंक मेरा लॉजिक लगाने के बाद आई थिंक ए इज़ द आंसर, बट ए इज़ नॉट द आंसर, बी इज़ द आंसर, सो देन वी कैन थिंक व्हाई इट इज़ बी। हाँ, दूसरा चीज़ यहाँ है कि समटाइम्स यू आर एलिमिनेटिंग सी एंड डी, फिर ए और बी बच गया, सो देन यू हैव प्रॉब्लम विथ ए एंड बी। कभी क्या होता है, आंसर विल बी इधर सी और डी, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। Then you should think that why there is C and D. There is lot of difference in your assessment and in the answer.
अगर ए आपने सोचा ए और बी होगा, देन देयर इज बी, दैट मीन्स 50-50, आप 50% सही सोच रहे हैं. बट अगर आपने ए और बी सोचा एंड द आंसर इज सी और डी, दैट मीन्स देयर इज सम manufacturing problem in your answers. The way you are manufacturing things is not right. So then general mental ability, you need to do again some basic questions, then think why this is the answer. At the same time there may be some questions regarding those you don't have basic idea even. उन questions को भी छोड़िए. Then you can discuss those questions with me, and I have some of my friends who are very good in those टॉपिक्स. जैसे कोई जनरल मेंटल एबिलिटी में ठीक है, उनसे मैं बात करूंगा. अगर वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो आसान वाली चीज़ें हैं, वो आपको नहीं आ रही हैं, देन वी कैन हेल्प यू आउट कि ये बुक आप पढ़ लीजिए. अगर हमें लग रहा है कि उसका लेवल कुछ ज़्यादा है एंड दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट फॉर CSAT, सो देन वी विल रिकमेंड यू कि लीव दीज पोर्शंस. देन सेम इज द केस विद बेसिक मैथ्स. बेसिक मैथ्स में क्या है, आई वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू दैट इन बेसिक मैथ्स व्हाट यू डू मोस्ट ऑफ द टाइम, यू आर स्केयर्ड ऑफ थिंग्स. कभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है एंड यू थिंक मेरे से नहीं हो पाएगा. वंस देयर इज बेसिक कैलकुलेशन और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, बॉड मास का कुछ ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, सो यू गेट स्केयर्ड. सेम इज द केस विथ मी ऑल्सो. मैं भी कभी डरता था किसी क्वेश्चन से. वो हमें नहीं करना है. हमें पहले देखना है कि इफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स इज टू ईजी, वी शुड नॉट लीव दैट क्वेश्चन. ठीक है. आई थिंक आई विल बी कंक्लूडिंग दिस CSAT discussion. So the important thing right now which I am going to share with you is that we are just trying to find out the disease. जो diagnose हमारा होना चाहिए ना, वो पता चलना चाहिए कि where is the problem. Then we will give you remedies accordingly. जिस बच्चे को, जिस एस्पिरेंट को कहीं पे issues आ रहे हैं CSAT में, कहीं particular portions में, please discuss it with me. You have my contact number as well, and I have so many friends who have this engineering backgrounds, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है. बट एक चीज़ मैं आप लोगों से बता दूंगा, यू नीड टू डू सम पेपर्स. प्लीज़ स्टार्ट विथ सम पेपर्स. ये मत सोचे पहले मैं बुक पढ़ लूँगा देन आई विल डू पेपर. स्टार्ट विद द पेपर्स, देन वी विल अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज व्हाट नेक्स्ट वी शुड डू. एंड आई होप यू आर फाइंडिंग दीज वीडियोज़ हेल्पफुल टू सम एक्सटेंट. आई नो मैं भी नया हूँ इस फील्ड में, आई डोंट हैव मच आइडिया. वीडियोज़ भी सही नहीं होंगे, कुछ कैमरा भी अच्छा नहीं होगा, बट प्लीज़ bear with me and with my friends as well. So with the passage of time, अगर हमें लग रहा है कि it is going to help you out, it is somehow productive, we will continue with these discussions, and we will invite some of our friends who have got through civil services. कुछ लोग IAS हैं, कुछ लोग IPS हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो कुछ चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ. Thank you. I hope you will give your feedback. Thanks.